These are integral part and parcel of our team and our brand ambassador at IFM level, at a group level. So his stories, I think few people are already aware of. He's very, very inspiring, and he's a youth icon, Chandigarh icon, and he has completed 250 kilometers in 35 hours. The toughest ultra marathon running at Spartan. Spartan is one of the, he will explain that run, and last year also he tried, but he got fever in running and all that stuff, and there was a rain, and he could not finish, but he finished 180 kilometers last year. But वो कहते हैं ना, गिर के ही फिर उठने वाली जो बात होती है ना, that is the actual spirit. And so there are very few people who qualified. Number he is going to share with you. And then because of team building, with 3 people from India completed that race, and 2 people are from Chandigarh and Panchkula. So the point here is that when we talk about health is wealth, health is not the wealth, health is only the wealth. And I think when I was at IIM Ahmedabad, I met the marketing guru, Mr. Raju, and he shared with me that either running or in football, you don't require many equipment. 1 ball, 22 players. I think that will suffice your complete health if you will play for 15 minutes or half an hour. And for running, you don't require anybody. You know? So the point here is that, and he gave me few books on running only. It should be integral part of yours, and it will make your physical fitness. And when you have a physical fitness, your mental fitness, your agility is going to be much more. So, so with that note, I think Amit is going to share with you the complete game, and he is brand ambassador for Skechers. अभी 1-1.5 घंटे अपना वैली में स्केचर के बिहाफ पे ट्रेनिंग करते हैं फर्स्ट सैटरडे ऑफ अ मंथ. सो ही इज़ here with us for all Saturday of a month. So new patches, new people. We would like to inspire that all youngsters, you know, he should inspire from Amit and his story and whatever he has done. And मैं भी चाहता हूँ कि हमारी टीम में से काफ़ी लोग इंस्पायर हों कि हमने हाफ मैराथन करनी है. दैट इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट टारगेट, देन फुल मैराथन, एंड हो सकता है कोई हमारे से भी अल्ट्रा मैराथन रनिंग कर ले, बिकॉज अमित स्टार्टेड एट द एज ऑफ 35, 36. सो ये नहीं है कि इम्पॉसिबल इज़ इन द डिक्शनरी ऑफ फुलिश. सो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ हेयर, यू नो. सो मन जीते जग जीत. आई एम सेइंग इफ यू कॉन्कर योर माइंड, you can win anybody, anything. So with this these words, Amit ji, brief about your program, what Spartan program was, selection process, and in that whole journey of 250 kilometers. मतलब इट्स फुल लाइफ. 35 घंटे आपने दौड़ना है, मतलब इट्स पूरी लाइफ है. मतलब आप लाइफ को 50 साल 100 साल को श्रिंक कर दो 35 घंटे में. अप्स डाउन, दुख सुख खुशी डाउन, आप कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट करके रखना है कि मेरे को ये अचीव करना है. सो हमारी, हम जब रनिंग करते हैं, हमारे शायद आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है लाइफ में कि यार छोड़ दो. अगर आपने वो पॉइंट क्रॉस कर लिया, फिर आप 10 किलोमीटर चाहे 45 किलोमीटर चाहे 50 किलोमीटर चाहे 100 किलोमीटर जितना मर्जी दिखाएं. ओवर टू यू. Thank you, sir. Good morning, all. Good morning. So first of all, so I will, like congratulate to sir जो सर ने एक इनिशिएटिव किया हुआ है for every one of you. Like मैं भी एक जो क्या बोलते प्रोफेशनल फील्ड से आता हूँ, मतलब इतना अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को कोई सपोर्ट नहीं करता है फॉर हेल्थ. टू बी ट्रू, मतलब लाइक मेरी जो कंपनी है उनका कभी कोई ऐसा इनिशिएटिव ही नहीं है कि वो हेल्थ की तरफ भी कुछ फोकस करें. जो खुद से कर रहे हैं दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो. बट जो सर ने, मतलब मैं सर को पहले ही बोल चुका हूँ कई बार, जो एक इनिशिएटिव ये लिया हुआ है, लाइक सबको इन्वॉल्व करके स्टाफ को
उनको बताना है हेल्थ के बारे में कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। दैट इज़ रियली ग्रेट। तो मैंने PhD की है PGI चंडीगढ़ से। आफ्टर दैट आई जॉइन MNC पैरेक्सल करती है। तो करंटली आई एम वर्किंग एज मेडिकल राइटर। बट लाइफ में जब आपका तो फिर भी जॉब थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग या वो होगा, जब आप PhD करते हो उससे बोरिंग कोई लाइफ नहीं होती। टू बी ट्रू, मतलब हम 6-6 महीने काम करते थे, हमारे रिजल्ट्स आते नहीं थे लैब में, तो जो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती है, आपको सैलरी साल में एक बार मिलती है, कभी 6 मंथ में सेंटर ने भेज दी जो आपकी फेलोशिप होती है बेसिकली, कभी वो साल में भेजते थे, कभी 6 मंथ में भेजते थे, मंथली आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन अलग से होती थी। इस एज में आके आप अपने घर से पैसे नहीं मांग सकते, है ना, कि आप इतने बड़े हो गए और मम्मी पापा को बोलोगे पैसे दे दो, हमें खर्चे के लिए, खर्चे नहीं चल रहे हैं। तो हमारा फेलोशिप ही होता था, वो 6 मंथ में आ रहा है, कभी साल में आ रहा है, ऊपर से रिजल्ट्स नहीं आते थे। तो उस टाइम पे मतलब लाइक जो मुझे हैबिट्स लगी ड्रिंकिंग की, और कोई लाइफ रूटीन नहीं था, मतलब सर्कल भी ऐसे ही होते हैं, फिर वो सारे PhD वाले सब अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहे होते हैं, तो एनवायरनमेंट भी एक ऐसा बन जाता है वो फ्रस्ट्रेटिंग सा ना। तो तब मैंने ये एक रनिंग वाला जो चैलेंज है ये स्टार्ट किया था। फर्स्ट डे जब मैंने रनिंग किया था तो आई वॉज नॉट एबल टू रन 1 किलोमीटर। 300-400 मीटर दौड़ने के बाद मुझे लगा कि मुझसे तो नहीं होगा, मैंने फिर वॉक की। आई वॉज रनिंग विद ग्रुप, तो उस ग्रुप में जितने भी लोग थे सब मुझसे बड़े थे, है ना, कोई 15 किलोमीटर दौड़ के आ रहा है, कोई 20 किलोमीटर दौड़ के आ रहा है, कोई 25 किलोमीटर दौड़ के आ रहा है। वहाँ पे मेरे 2 किलोमीटर हुए थे और मैं वहाँ मतलब खड़ा होकर सबको देख रहा था। आई वॉज द न्यूबी। तो मुझे लग रहा था कि यार मैं मतलब लाइफ में कर क्या रहा हूँ, मेरी एज भी सबसे कम है ना, फिजिकली आई एम नॉट एक्टिव, मेंटली भी फ्रस्ट्रेशन अलग से होती हैं। सो उस दिन मैंने कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक चैलेंज लिया था कि एटलीस्ट कुछ करना है लाइफ में। ठीक है, PhD अपनी जगह, एजुकेशन चलती रहेगी, बट वही सब कुछ नहीं है। अगर मैं फिज़िकली फिट नहीं हूँ तो मतलब कितने दिन आप खुश रह पाओगे, कितने दिन अपनी लाइफ को अच्छे से चला पाओगे अगर आप अंदर से ही ठीक नहीं फील कर रहे हो। सो वहाँ से मैंने रनिंग स्टार्ट की थी, जैसे सर ने बोला 34-35 ईयर की एज में। बट उसके बाद टू बी ट्रू मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरा एक माइंड था कि मैंने छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझसे 1 किलोमीटर होता है, 2 किलोमीटर होते हैं, वॉक होती है, रन होती है, जो भी है मैंने डेली करना है। सो वहाँ से मैंने अपना ये चैलेंज स्टार्ट किया था। एंड आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो आई एम इन टॉप 3 रनर्स इन द इंडिया। सो जो अभी मैंने रिसेंटली इवेंट किया स्पार्टाथलॉन, ये ग्रीस में होता है, 248 किलोमीटर का रन है ये। सो इसका कट ऑफ है 36 आवर। आपको 36 आवर में 248 किलोमीटर्स कंप्लीट करने होते हैं। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ इस इवेंट की। अगर आप में से किसी ने 300 मूवी देखी हो, सो जो फाइट हुई थी स्पार्टन्स की, बेसिकली क्या था, एथेंस पे अटैक हुआ था पर्शियंस का। सो एथेंस की जो आर्मी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो पर्शियंस से फाइट कर सके। सो उन्होंने अपनी सपोर्ट के लिए स्पार्टन्स को एक मैसेज भेजना था कि स्पार्टन्स आएँ, स्पार्टन्स क्योंकि फेमस थे फाइटिंग के लिए, कि वो आएँ और उनकी हेल्प करें उस फाइट में। सो उस टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट आई डोंट नो 1000 ईयर्स बैक, कि कुछ इतना कोई भी ऐसा मोड नहीं था कि आप मैसेज उनको डायरेक्ट भेज सको। सो उन्होंने जो उनका बेस्ट एथलीट था उनकी आर्मी में, उसको चूज़ किया टू डिलीवर दैट मैसेज। जो अब जैसे लेट्स से कि सर ने किसी को सुबह बुलाया कि भाई उन्हें ये वहाँ ये वाला मैसेज पहुँचाना है, वो मॉर्निंग बिफोर सनराइज़ उस रनर ने वहाँ से स्टार्ट किया। एंड जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, जो लोग बताते हैं कि नेक्स्ट डे सन सेट से पहले वो स्पार्टा पहुँचा रनर वो मैसेज लेके। सो जो उन्होंने वो कैलकुलेट किया, दैट इज़ अप्रोक्सीमेट 36 आवर्स, कि उसने उस टाइम पे उतना टाइम लिया था ये डिस्टेंस कवर करने में। सो अब क्या हुआ कि उसके कई सौ साल बाद जब US से 2 रनर्स थे, वो ग्रीस पहुँचे, तो लाइक उनको हिस्ट्री का भी बड़ा था, तो उन्होंने वहाँ की ग्रीस की हिस्ट्री वर्ल्ड में सबसे रिच है, क्योंकि सब कुछ वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो सारी भी जितनी भी स्ट्रॉन्गेस्ट आपको चाहे लाइक स्पिरिचुअल बोल लो, पॉलिटिकल बोल लो, वो सारी हिस्ट्री ग्रीस से, सब लोग आज भी हिस्ट्री में वही पढ़ते हैं। सो उन्होंने वहाँ देखा कि इनके यहाँ पे कुछ ऐसा है, वो रनर थे, तो उनको एक अंदर से हुआ कि यार उस टाइम पे उस बंदे ने 36 आवर में ये डिस्टेंस कवर किया है, आज के टाइम पे इज़ इट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू कवर दैट डिस्टेंस। सो उन्होंने अपनी टीम बनाई, 2 रनर वहाँ से लिए ग्रीस से लोकल, 2 वो US के थे।
उन 4 लोगों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया मॉर्निंग में। पहले उन्होंने वो रूट बना लिया था कि वो किस रूट से गया होगा, क्योंकि इतने साल हो गए तो कंस्ट्रक्शन हो गई, रोड बन गई, कहीं पे गांव बन गए जिस रूट से वो निकला था। बट उन्होंने ट्राई किया कि मैक्सिमम वो उसी रूट को रेप्लिकेट करें। उसमें सब कुछ आते हैं, पहाड़ भी आते हैं, ट्रेल्स भी आते हैं, है ना, रोड्स भी है, सब कुछ था। तो उन्होंने स्टार्ट किया। उन 4 में से 2 लोग 36 आवर में स्पार्टा पहुँचे एथेंस से दौड़ के। 2 लोग नहीं पहुँच पाए, उन्होंने 40 आवर से ज़्यादा का टाइम लिया। बट अगेन दे थिंक कि ह्यूमनली इट इज़ पॉसिबल टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस इन 36 आवर। तो वहाँ से उन्होंने ये एक इवेंट क्रिएट किया था 1979 में। 1979 के बाद 1980 से उन्होंने ये इवेंट कराना ऑफिशियली स्टार्ट किया। पहले वो सिर्फ ग्रीस से जो रनर्स थे उनको बुलाते थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने इसको वर्ल्ड लेवल पे फेमस करना स्टार्ट किया। आज के टाइम पे ये एक तरह से वर्ल्ड की ओल्डेस्ट अल्ट्रा मैराथन है, और अगर मैं बोलूँ टफेस्ट भी है इन द सेंस ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। मतलब वर्ल्ड में जितने भी इवेंट्स होते हैं रनिंग के, वहाँ कहीं नहीं ऐसा होगा कि आपको 250 किलोमीटर दिए हैं और टाइम दिया 36 आवर्स का कि आपको कंप्लीट करना है, एक्सेप्ट दिस रेस। उनका एक कंसेप्ट ये भी है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसको चैलेंज कैसे करना है, उसकी कैपेबिलिटी कैसे देखनी है कि वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस और नॉट। सो एक जो आपका मेंटल सेटअप है, पहले तो उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना कि 250 किलोमीटर दौड़ना है और वो 36 आवर में दौड़ना है, दैट इज़ अनदर चैलेंज। तो वहाँ से ये इवेंट क्रिएट हुआ था। आज की डेट में जो ये इवेंट है, उन्होंने डे 1 से 1980 से आज तक एक नंबर फिक्स रखा है कि वो 390 से ऊपर रनर्स नहीं लेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। 390 में सो उन्होंने क्या किया हुआ है, 30 रनर्स उनके फिक्स हैं, वो ग्रीस के होंगे लोकल। 30 रनर ये यूएस वालों ने इवेंट बनाया था, तो उन्होंने अपने नंबर फिक्स रखे थे कि 30 नंबर हमारे होंगे, तो 60 टोटल हो गए। 30 नंबर्स फिक्स किए उन्होंने जापान के लिए। जापान का अगर मैं बोलूँ रनिंग के फील्ड में उनसे ऊपर कुछ भी नहीं, चाहे वो अल्ट्रा मैराथन हो, चाहे मैराथन हो, चाहे हाफ मैराथन हो। उनका एक ये डेली का रूटीन है। जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उनका रनिंग एक डेली रूटीन है। अगर वो रनिंग ही नहीं करेंगे तो उसके बिना उनका डे कंप्लीट नहीं होता है। तो जापान के 30 नंबर रखे गए क्योंकि वहाँ के लोग उनके कल्चर में है रनिंग, उनको प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा 30 नंबर उनके। सो 90 नंबर्स ये फिक्स हो गए उनके कि ये 90 तो होने ही होने हैं आउट ऑफ 390। सो जो 300 है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी कंट्रीज़ हैं वो वहाँ से सेलेक्ट करते हैं। देन फर्दर दे सेट सम क्राइटेरिया कि ऐसे नहीं कि जी मैं उनको बोल दूँ कि मैं रनिंग करता हूँ और आप मुझे ये इस इवेंट में अलाउ कर दो। वो उस चीज़ को अलाउ नहीं करते। उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं कि आपको पहले कुछ क्वालिफाइंग रेसेस अपनी दिखानी पड़ेगी कि हाँ मैंने इससे पहले ये किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपने 24 घंटे में 200 किलोमीटर किए हुए हों पहले, या आपने 160 किलोमीटर 21 घंटे के अंदर अंदर किए हुए हों, या 100 किलोमीटर आपने 10 घंटे में किए हुए हों। सो 7-8 क्राइटेरिया हैं उनके, उसमें से आप किसी भी एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दैट इवेंट। उसके बाद वो पूरा स्क्रीन करते हैं आपको, जो आप अपनी रनिंग प्रोफाइल भेजते हो। सो ऑलमोस्ट एवरी ईयर 6-7,000 एप्लीकेशंस उनके पास आती हैं, उसमें से वो 300 रनर्स को चूज़ करते हैं। आई वॉज़ लकी कि मैं 2 बार सेलेक्ट हुआ हूँ उसके लिए। एक बार 2019 में, तब आई वॉज़ नॉट एबल टू कम्प्लीट दैट इवेंट क्योंकि उस रेस में क्या होता है, कभी नहीं एक्सपेक्टेड होता कि बारिश हो। ग्रीस का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, तो जितने पहले सब रनर्स दौड़े थे, जितनों ने वो रन पहले पूरी की हुई थी, इंडिया से किसी ने नहीं की थी। सो जो फॉरनर्स थे, मैंने उनको सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट किया, उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए इस रेस के लिए। सो एवरीवन टोल्ड मी कि आप जितना हो सकता है हीट ट्रेनिंग करो, कि यहाँ पे गर्मी इतनी होती है कि गर्मी की वजह से ही मैक्सिमम लोग इस रेस को छोड़ते हैं, और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। सो अब ये सितंबर के लास्ट वीक में होता है इवेंट। सितंबर से पहले इंडिया में गर्मी ठीक होती है, अगस्त, जुलाई, जून, मई। तो मैं क्या करता था, हीट ट्रेनिंग करने के लिए मैं दोपहर में जाता था दौड़ने। 12 बजे मैं अपनी रन स्टार्ट करता था सुखना लेक पे। 12 से 3-4 बजे तक 3-4 घंटे की अपनी मैं ट्रेनिंग करता था वीकेंड पे। वीकडे तो वर्किंग होते थे, तो मतलब दिन में दौड़ना पॉसिबल नहीं था, तो वो मॉर्निंग और इवनिंग करता था। बट वीकेंड पे मैं हीट ट्रेनिंग करने के लिए स्पेशली जाता था दोपहर में दौड़ने के लिए। सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर कि मेरी हीट ट्रेनिंग तो अच्छी है, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा गर्मी कहीं पे भी नहीं होती।
बट जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे कुछ साइक्लोन आया हुआ था, उसकी वजह से जैसे ही हमारी रन स्टार्ट हुई उससे पहले बारिश स्टार्ट हुई और वो बारिश कॉन्टीन्यूस होती रही। तो 160 के राउंड जाके लाइक इतनी ठंड हो गई, क्योंकि ना मैं कुछ एक्स्ट्रा कपड़े लेके गया था अपने चेंज करने के लिए, ना उस माइंडसेट से गया था कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। जो मैंने अपने शू या अपना कुछ खाने का सामान बीच में रखा हुआ था वो सारा मुझे पानी में तैरता हुआ मिला। तो उसकी वजह से मुझे हाइपोथर्मिया हुआ, फीवर होके मैंने 160 पे वो इवेंट क्विट कर दिया था। बट मेरे माइंड में था कि कुछ भी हो जाए मैंने ये इवेंट करना है। लाइक अगर ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ ख़राब होगी या कुछ हो गया तो हाँ इसके बाद छोड़ देना, करना ही नहीं है। मुझे पता था कि मुझे ये एटलीस्ट इसकी फिनिश लाइन पे पहुंचना है चाहे कुछ भी हो। तो मैंने 19 के बाद फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, 2021 में फिर से अप्लाई किया, 2022 के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। इस बार इंडिया से हम 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। सो जब यू नो हम सारे पहुंच गए थे इससे पहले भी, तो एक लड़का और भी बीमार था, वो मेंटली डाउन था कि मैं तो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा। जो सर ने टीम बिल्डिंग वाली बात की, तो हम तीनों ने पहले ही स्ट्रेटजी बनाई थी कुछ भी हो जाए, मतलब उन तीनों में मैं थोड़ा फास्ट दौड़ता हूँ। सो स्टार्टिंग में हमारा था कि हम अपनी अपनी पेस से दौड़ेंगे। इन केस अगर किसी को बीच में कुछ लग रहा है कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा है, तो बाकी दोनों उसको पुश करेंगे कि नहीं छोड़ना नहीं है, इसको कंप्लीट करना है। उसमें 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लाइक एक तो आपका मेंटल सेटअप होता है। अगर आप मेंटली किसी रन को छोड़ रहे हो, है ना, तो आपका इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है उसके बाद, उस टाइम पे तो आप छोड़ देते हो। उसके बाद मतलब ये होता है, जो मैं एक रनर की आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि 15-20 दिन तक वो खाना भी नहीं खाता वापस आके। उसका इतना मेजर मेंटल ब्रेकडाउन होता है कि मैंने ये क्या किया, मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो बाद में बैठ के सोचता है इस चीज़ को कि अगर मैं वहाँ और थोड़ा सा वॉक ही कर लेता, रन ना करता, हो सकता है थोड़ी देर बाद फिर से मेरी बॉडी वापस बाउंस बैक करती, मैं फिर से उस इवेंट को कंप्लीट कर लेता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब, अच्छा इसमें आपके माउंटेन्स, ट्रेल्स, रोड्स सब कुछ आते हैं 250 किलोमीटर। आपके पास खाने का टाइम होता नहीं है, क्योंकि उनके कट ऑफ 75 कट ऑफ्स उन्होंने बीच में बनाए हुए हैं इस पूरी डिस्टेंस में। सो जैसे हर 3 किलोमीटर के बाद उनका एड स्टेशन होता है जहाँ पे पानी, कोल्ड ड्रिंक या चिप्स इस तरह की चीज़ें वो देते हैं। बट जहाँ पे भी उनका एड स्टेशन होता है वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा होता है उनका, उस पर लिखा होता है कि ये एड स्टेशन इतने बजे क्लोज हो जाएगा और उसके जो आगे वाला है 3 किलोमीटर बाद जो है वो इतने बजे क्लोज हो जाएगा। तो जब आप उसमें पहुंचते हो आप देखते हो यार मेरे पास तो अगले वाले के पहुंचने के लिए 25 मिनट बचे हुए हैं बस, है ना। तो आपके पास इतना नहीं होता कि आप खड़े होकर वहाँ कुछ खा भी सको। आपको होता है कि मैं पहले आगे वाले पहुँचता हूँ फिर देखता हूँ क्या होता है। सो यही हमारे साथ का मतलब ऑलमोस्ट हर एक रनर के साथ यही सिचुएशन वहाँ चल रही होती है कि वो अपनी घड़ी की तरफ ज़्यादा देख रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू खाने की तरफ। उनको है कि कहीं भी, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेशन पे टाइम से नहीं पहुंचते हो तो पीछे से एक बस चल रही होती है, उसको वो बोलते हैं डेथ बस। अगर आप उस पे टाइम पे नहीं पहुंचे हो स्टेशन पे, वो आपको उठा के बस में डाल देंगे, आपकी रेस वहीं ख़त्म है। तो आपके ऊपर हर तरह का प्रेशर होता है, आपको अपनी एनर्जी भी लेनी है, आपने अपने न्यूट्रिएंट्स भी लेने हैं, आपने अपना खाना पीना भी करना है, आपने अपना टाइम भी देखना है, आपने अपनी बाकी चीज़ें भी देखनी है कि मैंने कहाँ पे शू चेंज करने हैं, कहाँ पे कपड़े चेंज करने हैं, कहाँ पे कैसे करना है, कहाँ पे दौड़ना है, कहाँ वॉक करनी है। वो आपको सारा प्लान करना होता है पहले ही, क्योंकि वो आपको रूट मैप दे देते हैं कि यहाँ पे आपको इंक्लाइन आएगा, यहाँ पे डिक्लाइन है, यहाँ पे ट्रेल है, यहाँ पे रोड है। सो आपको इतना आइडिया होता है कि इस जगह पे ऐसा होने वाला है, आप उसी तरह से अपनी प्लानिंग करते हो। तो जो लाइक ये तो एक स्पोर्ट्स वाली बात होगी। रनिंग का जो मुझे सबसे बड़ा इफ़ेक्ट अपनी लाइफ में लगा कि जो रेगुलरिटी, जो पंक्चुअलिटी, जो हेल्थ आपकी किसी एक स्पोर्ट्स में आने के बाद होती है, और उसके जितने फ़ायदे आपको अपनी लाइफ के बाकी चीज़ों में होते हैं, वेदर इट्स योर फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ पे कि अभी तो शायद मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको यकीन नहीं होगा, जब आप ये खुद से करोगे एक बार तब आपको फील होगी कि मेरे जैसा बंदा, मतलब मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ जिसकी कभी कोई रेगुलरिटी नहीं थी लाइफ में, आज के टाइम पे 2023 का पूरे साल का प्लान मेरे पास है कि मुझे किस मंथ में क्या करना है, मुझे अपने ऑफिस से कब लीव लेनी है, कब नहीं लेनी है। तो जो मेरे सीनियर्स हैं वो भी मुझे ये, मतलब जो मेरे मैनेजर्स हैं वो मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि अमित की लीव मंथ के पहले मंथ में साल के वो दे देता है हमें कि सर मेरी ये पूरे साल की लीव है, सो दैट कि बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ ओवरलैप या कुछ भी हो रहे हैं तो वो अपने आप देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है किस मंथ में मैंने कितनी लीव लेनी है।
मुझे जॉब करते हुए 6 साल हो गए हैं, आज तक एक भी मेडिकल लीव मैंने नहीं ली है। मेरे मैनेजर खुद बोलते हैं कि भाई 7 लीव होती है मेडिकल, तुम ले लिया करो। मैं कहा सर अगर मैं मेडिकल लूँगा मैं बीमार नहीं होता हूँ, ठीक है। टचवुड में मतलब जब से मैंने रनिंग किया आज तक मैंने एक मेडिसिन नहीं खाई है कभी भी। मुझे फीवर भी होता है तो मैं अपनी रन वॉक करके उसको ठीक कर लेता हूँ, मैंने कभी मेडिसिन नहीं ली है। 6 साल हो चुके हैं। बट जब वो बोलते हैं मेडिकल लीव ले लो तो मुझे मेंटली लगता है कि यार मैं बीमार हो गया हूँ। मैं उनको बोलता हूँ सर मुझे मेडिकल लीव नहीं चाहिए, आप इसको किसी और में कन्वर्ट करके मुझे लीव दे दो। मेडिकल लीव के नाम पे तो मैं नहीं लूँगा। मैंने 6 साल से मेडिकल लीव नहीं ली है, मेरी सारी ऐसी वो बोलते हैं कि साल के एंड में वेस्ट हो जाती है ये, तुम अवेल कर लिया करो। मैं कहा सर आपने रनिंग के लिए मुझे लीव देनी है दे दो, बट मैं मेडिकल लीव नहीं लूँगा। तो जो मैं आपको एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ, रनिंग का इम्पैक्ट जो मुझे लगता है, रनिंग इज़ जस्ट लाइक योर लाइफ। क्या होता है कि हम जब दिन स्टार्ट करते हैं हम बड़े एक्टिव से होते हैं, बड़े जोश में ऑफिस जाएंगे या कुछ भी करेंगे, धीरे धीरे फिर वो थोड़ा सा बोरी होने लगता है माइंड में ना कि रोज़ सेम काम कर रहे हैं, कुछ और कर लेते हैं, फिर लगता है कि अच्छा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। जब भी जैसे मैंने अपना इवेंट स्टार्ट किया, जब इवेंट स्टार्ट करते हो आपकी बॉडी फ्रेश होती है, आपको लगता है कि ये 36 घंटे तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो इसको 25 घंटे में कर दूंगा जब आप दौड़ना स्टार्ट करते हो। बट जैसे ही आपके 50 किलोमीटर होते हैं आपको रियलिटी दिखने लगती है, आपकी बॉडी डाउन जाने लगती है, एनर्जी ख़त्म होने लगती है। 50, 60, 70 किलोमीटर पर जब आप पहुंचते हो आप खुद को गालियां देने लगते हो कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मुझे मिलेगा क्या ये करके। मतलब आपका माइंड आपको 1000 रीज़न देता है रेस छोड़ने के कि क्या करना है, और इससे पहले इतनी रेसेस की हुई हैं, बहुत दौड़ तो लिया, अब और कितना दौड़ना है, क्यों दौड़ना है, अच्छा मुझे तो लेग में पेन हो रहा है, मुझे तो यहाँ पेन हो रहा है। मतलब आपको पेन नहीं होते फिर भी आपके माइंड में वो चीज़ें आ रही होती हैं कि पेन हो रहा है, ये छोड़ दो, ये कर दो। बट जो रियल चैलेंज है, जो मुझे लगता है कि जो आपके माइंड की फ़ाइट है, अगर आप उसको जीत जाते हो तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। सारा जो गेम है आपके माइंड का है। मतलब रनिंग हो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे आपकी नॉर्मल लाइफ हो, फिजिकली आपका 30% होता है, 40% होता है, 60% आपका मेंटली होता है किसी भी काम के लिए। अगर आपने मेंटली उस चीज़ को सोच लिया कि मुझसे होगा ही नहीं है, तो ऑलमोस्ट मतलब 50% तो आप उसको वैसे ही छोड़ चुके हो। तो रनिंग में एक हर एक जो रनर है, जो हाफ मैराथन इवन जो फुल मैराथन दौड़ते हैं, यहाँ भी बैठे हैं 2-3, आप उनसे भी पूछोगे, श्रवण है ना। जब आप स्टार्ट लाइन पे खड़े होते हो और जब आप फिनिश लाइन पे होते हो, जो स्टार्ट लाइन पे बंदा था आपको उसके बिल्कुल चेंज बंदा मिलता है फिनिश लाइन पे। उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसका जो सोचने का तरीका है, उसका जो लाइफ को देखने का नज़रिया है, वो बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। क्योंकि जब आपको ना रनिंग में इतने सारे अप डाउन्स मिलते हैं, सेम लाइक आपकी जो लाइफ में अप डाउन्स होते हैं। जो अभी पीछे एक एनालिसिस हुआ था NCR में, मेरा फ्रेंड है साइकोलॉजिस्ट है वो, तो कोविड के टाइम पे उसने जो एनालिसिस करके बताया था, जितने मेंटल ब्रेकडाउन हुए हैं आज तक कभी नहीं हुए लोगों के, चाहे वो कैसे भी थे, किसी की जॉब जिग गई, किसी को फाइनेंशियली हुआ, किसी को फैमिली वाइज हुआ, लोगों को इतने ज़्यादा मेंटल इशू हुए। वो बोलता है कि जो मेरे पास पेशेंट पहले दिन के 3 या 4 आते थे, कोविड के बाद 10 से 15 आ रहे हैं जिनको मेंटल इशू हुए। बट वो खुद एक रनर है और उसने मतलब लोगों को मेडिसिन नहीं दी है, उसने लोगों को सिर्फ ये बोला है कि कुछ भी वर्कआउट करना स्टार्ट करो, रनिंग करो, कुछ अपना जिम जाओ, योगा करो, कुछ भी एक ऐसा वर्कआउट लो अपना कि आपने दिन में वो एक्टिविटी करनी है। उससे ही आपकी जो मेंटल प्रॉब्लम है 20 से 30% तो उसी से कम हो जाएगी। बाकी चलो जो फाइनेंशियल है या जो फैमिली है, वो मतलब ऑब्वियसली वो चीज़ें धीरे धीरे टाइम लेती हैं। एंड उसने जितने अपने पेशेंट्स को ये चीज़ रनिंग रिकमेंड की है, उसमें से उसने मुझे टेस्टिमोनियल्स पढ़ाए। ऑलमोस्ट 90% लोगों ने इतना पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब वो 2-3 बार आने के बाद उसके बाद आई भी नहीं है उसके पास, बोल रहे कि हम खुद ही फील कर रहे हैं। क्योंकि जब आप रनिंग करते हो, जो आपके अंदर से एस्ट्रोजन, जो आपके अंदर से फेरोमोन्स रिलीज़ होते हैं, वो फेरोमोन्स आपके मूड एनहांस करते हैं बेसिकली। तो जब आपका मूड ही अपलिफ्ट हो गया है ना, आप अपने आप में अच्छा फील कर रहे हो कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो आपकी आधे से ज़्यादा जो मेंटल टेंशन है वो वैसे ही रिलीज़ हो जाती है। सेम थिंग अप्लाइज टू रनिंग। जब कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने इवेंट बीच में छोड़े हैं। मैं स्टेडियम में दौड़ रहा हूँ 24 आवर, या मैं कहीं और दौड़ने गया हूँ,
मैं बीच में छोड़ दिया, उस टाइम तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि दिमाग में लगता है कि ये तो इंजरी हो गई है, मुझे तो सीरियस हो जाएगा, अगर अभी नहीं छोड़ा तो बाद में मुझे हो सकता है बेड पे बैठना पड़ जाए, मैं दौड़ नहीं पाऊँगा। तब तो ये मतलब माइंड आपको हज़ार रीज़न देके वो इवेंट आपको छुड़वा देगा। बट उसके बाद जो गिल्ट फील आती है ना, जो गिल्ट आपके अंदर से आती है, आई थिंक उससे गंदी कोई फीलिंग मैंने अपनी लाइफ में एटलीस्ट मैंने नहीं देखी है। तो उस दिन के बाद से मैंने ये सोचा है कि ठीक है, आपसे नहीं हो रहा, आप वॉक करो, है ना। वॉक करो क्या है कि जैसे लाइफ में लेट से कि आपकी लाइफ में कुछ भी इशू चला हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, आप अपनी लाइफ क्विट करने की छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो। वो आपका एक फेज़ होता है कि उस चीज़ को थोड़ा ऐसे ही रहने दो, डिस्टर्ब ना करो, जैसे लाइफ चल रही है थोड़े दिन के लिए उसको रूटीन पे चलने दो, लाइफ फिर से बाउंस बैक करती है। कोई एक दिन ऐसा आपका आता है कि आपको लगता है कि हाँ सारी चीज़ें फिर से ठीक हो रही हैं। सेम चीज़ रनिंग में जब भी लगता है ना कि अब मुझसे नहीं दौड़ा जा रहा, मुझे इंजरी हो रही है, एंड ये मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, 99% रनर्स ये करते हैं, वो वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो 2-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वॉक करते हैं, उसके बाद उनको खुद लगता है कि उनकी बॉडी फिर से बाउंस बैक करती है, वो फिर से रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे साथ इस बार भी क्या हुआ कि जब मैं 150 किलोमीटर पे पहुंचा, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि ग्रीस में लाइक वहाँ पे हमारी तरह खाना तो मिलता नहीं है, तो उनका नॉन वेज और ये सारी चीज़ें हैं वो मैं खाता नहीं हूँ, मतलब नॉन वेज मैंने क्विट किया हुआ है बिकॉज ऑफ रनिंग ओनली, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। बट जब रन में आपको कुछ मिल नहीं रहा खाने को, मैं अपनी एनर्जी ड्रिंक्स और जो अपनी जेल लेके गया था, मैं सिर्फ वही खाई जा रहा था सुबह से, तो वो गट में जाके आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं 14-15 घंटे के बाद ना। मुझे वोमिटिंग स्टार्ट होगी, जब वोमिटिंग स्टार्ट होती है तो ओबियसली ना आपको रात में आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठंड लगने लगती है। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ कि मुझे वोमिटिंग होके मुझे था कि मैं थोड़ी देर के लिए सो लेता हूँ, कहीं भी एक एड स्टेशन पर चेयर पे बैठ के सो जाता हूँ। उसके बाद मेरे माइंड में आने लगा कि यार रहने दे, हो तो रहा नहीं है, रेस छोड़ दे, अगली बार देखते हैं। मतलब हर रेस में सेम कहानी आपके साथ रिपीट होती है, वो आपका मेंटल चैलेंज है, आपने उसको कैसे फाइट करना है। तभी पीछे से जो 2 और रनर थे जो इंडिया से गए हुए थे, कश्यप सर एंड मुनीष, वो दोनों, उसमें से भी उन दोनों के साथ भी पहले एक के साथ यही हुआ था, जो बीमार था वो बोल रहा था कि मैं छोड़ दूंगा, तो दूसरे रनर ने उसे पुश किया कि कुछ नहीं होता, छोड़ना नहीं है, हमारे पास टाइम है, हम अपना जो बफर टाइम लेके चल रहे हैं, तो हम वॉक कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है रन करना, हमने 36 आवर में कंप्लीट करना है। उन्होंने हमें 36 आवर दिए, वो हम पे डिपेंड करता है हमने कहाँ रन करनी है, कहाँ वॉक करनी है। उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ आपने सारा वॉक ही करना है। तो वो दोनों पीछे से वॉक करते हुए आ रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, तो मुझसे बात की, क्या हुआ, मैं क्या ऐसे ऐसे हो रहा है, बोले कुछ नहीं होता, वॉक करते हैं चलो। मतलब एक पॉइंट पे जहाँ मैं फिर से क्विट करने की सोच रहा था, वो दोनों आए, उन्होंने मुझे पुश किया, हम तीनों ने वॉक करनी स्टार्ट की। हमने रात को 10 किलोमीटर पूरी वॉक की है, बिल्कुल नहीं दौड़े हम 10 किलोमीटर बातें करते हुए चले हैं। और 10 किलोमीटर के बाद हम तीनों ऐसे थे कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ हुआ ही नहीं। हमने फिर से अपनी तीनों ने रन स्टार्ट कर दी, तीनों ने एक साथ फिनिश की, ठीक है। तो जो वहाँ से एक टीम बिल्डिंग वाली जो बात बनी हमारी, मतलब अगर हो सकता है हम शायद अकेले होते, हम आपस में बात ना कर रहे होते, तो हम तीनों छोड़ चुके होते। तो अगर तीनों छोड़ देते हमारा रिजल्ट आना था इंडिया से 0 फिनिश। तो जब लास्ट में फिनिशिंग वाला जो उनका सेरेमनी होती है, वो बुला के सबको मेडल देते हैं, उन्होंने ये चीज़ अनाउंस भी की है कि जो 3 दोस्त इंडिया से आए थे, उन्होंने जो टीम वर्क दिखाया है, इंडिया से 100% फिनिश है इस बार। आज तक किसी कंट्री की 100% फिनिश हुई नहीं है। जो 390 रनर्स ने स्टार्ट किया था, उनमें से 180 ने फिनिश किया। 180 में भी किसी कंट्री से 100% फिनिश नहीं थी। लेट से किसी कंट्री से 6 आए हैं, तो उसमें से 2 ने फिनिश किया, 4 ने छोड़ दिया। इवन जो उनके अपने लोकल थे, 30 ने स्टार्ट किया था, उनमें से 10 ने कंप्लीट किया, 20 ने छोड़ दिया। सो जो एक आपको पुश मिलता है, जो अपने साथ वालों को आप अगर साथ में लेके चल रहे हो, उनसे बातें करते चल रहे हो, है ना, आपका माइंड उस चीज़ में डाइवर्ट होता है, आपकी बहुत सारी जो स्ट्रेस है आपका वो रिलीज़ होता है बातें करते हुए। हमें वो चीज़ें शायद पता नहीं चलती हैं या हम उस चीज़ को फील नहीं करना चाहते, बट ये आप अपने उसमें भी देखना, आप दोस्तों से अपनी बातें शेयर करते हो, है ना, अपना कुछ भी दिमाग में चल रहा है वो शेयर करते हो, वो आधी टेंशन आपकी वैसे ही कम हो जाती है। चाहे दोस्त हेल्प करे ना करे, वो अलग चीज़ है। आपको ये लगता है कि कोई आपकी बात सुन रहा है, तो वो ही आपके लिए इतना बड़ा स्ट्रेस रिलीवर होता है कि यार चलो एटलीस्ट कोई है जो मुझे सुन रहा है। तो अगर मतलब लाइक आप देखो ना, जब स्टार्ट करोगे, मैं जो यहाँ रनिंग करते भी हैं उनसे पूछ भी लेना, रनिंग आपकी लाइफ के पैरेलल चलती है। कभी भी ऐसा नहीं है, कभी भी रनिंग को एज ए स्पोर्ट्स मत देखो।
रनिंग को एज ए लाइफ देखो। जितने अप डाउन्स आपकी लाइफ में होते हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ रनिंग में हुई। आप स्टार्ट करोगे, आप देख लेना स्टार्ट पे आपको लगता है कि बस मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना, बड़े जोश से स्टार्ट करते हो, 3-4 किलोमीटर के बाद डाउन हो जाते हो कि नहीं होगा यार, वॉक कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, बैठ जाते हैं। फिर से थोड़ी देर बाद फिर हिम्मत करते हो कि नहीं हम कर लेते हैं। लेकिन जब आप फिनिश लाइन आपको दिख रही होती है, जब आपको दिखता है कि अच्छा मैंने यहाँ फिनिश करना है, तो जो आपके अंदर चेंजेस होते हैं ना, वो आपको और किसी चीज़ से मिलेंगे ही नहीं। चाहे आप कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो एक रनिंग से जो आपके अंदर के फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, जो केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, जो आपके अंदर वो हेल्थ वाइज जो आपके अंदर चेंज लाते हैं, उससे अच्छे चेंज मैंने आज तक कहीं नहीं देखे हैं। सेकंड थिंग, जो रनिंग मुझे सबसे अच्छी क्यों लगती है, जैसे सर ने भी अभी बोला, अगर आपको फुटबॉल खेलनी है, आपको जिम जाना है, आपको साइकिलिंग करनी है, आपको कुछ भी करना है एक्सरसाइज, तो एटलीस्ट आपको जिम जाने के लिए पहले अच्छा मुझे रेडी होना है, अपना सामान लेके जिम पहुंचना है ना, आधा घंटा कम से कम चाहिए, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा रनिंग का ये है। मेरे साथ भी होता है, कई बार टाइम नहीं होता, मुझे लगता है मेरे पास 20 मिनट है, मैं घर से निकलता हूँ, 2-3 किलोमीटर दौड़ के आऊँगा, 2-3 किलोमीटर दौड़ के वापस आ जाऊँगा। मतलब ना मुझे उसके लिए तैयार होना है, ना मुझे अपनी गाड़ी उठा के कहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना, घर आके वापस आके नहा के तैयार होके ऑफिस। सो रनिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है, आपको किसी पे डिपेंड ही नहीं होना है कि हाँ वो आएगा तो मैं ये करूँगा। आपके पास जब भी टाइम है, सुबह टाइम है, दोपहर में टाइम है, शाम को टाइम है, रात को टाइम है, 15-20 मिनट, मुझे नहीं लगता कि आधा घंटा 24 घंटे में से कोई अपने लिए नहीं निकाल सकता। आधा घंटा निकालना बहुत बहुत ईजी है, और वो आधा घंटा आप कंटिन्यूस 15-20 दिन तक अपने लिए निकालते हो, तो वो आप एक ऐसा रूटीन बन जाता है कि फिर अगर आप उस आधे घंटे को नहीं निकालोगे ना अपने लिए, तो आपको लगता है आपका दिन ही कंप्लीट नहीं हुआ, कि आज मेरी एक्टिविटी नहीं हुई है तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर मेरी एक हफ्ता रनिंग नहीं होती, मेरी वाइफ से लड़ाई हो जाती है। वो मुझे खुद बोलती है कि तू जाके दौड़ के आ जा, ठीक हो जाएगा अपने आप। मतलब होता है ये, मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर मैं रन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी दोस्त से भी नहीं मिलता हूँ, एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, क्योंकि अब मुझे इतना टाइम हो चुका है इस एक्टिविटी को रेगुलर करते हुए, कि मुझे लगता है कि अगर जब तक वो नहीं हुई है तो मैंने कुछ किया ही नहीं है लाइफ। भले ही मैं अपना ऑफिस का भी काम कर लूँ, कुछ भी घर के कुछ भी काम कर लूँ, बट अगर मेरी ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो रही है तो मुझे लगता है कि मेरा दिन कंप्लीट नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब, जो बहुत सारे मिथ भी हैं कि रनिंग से आपके नी खराब होते हैं, रनिंग से ये होता है, रनिंग से। मैं 6 साल हो गए हैं आज तक सिर्फ मैं और रोड पे ही दौड़ता हूँ, ना कभी मैं ट्रेल में दौड़ रहा हूँ, है ना कभी मैं कच्चे में कहीं दौड़ता हूँ। उसके लिए सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, कि आपने शू कौन से पहनने हैं जो आपके नी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दुनिया भर के शू हैं मार्केट में। कोई आपको हो सकता है 20,000 के भी देगा, 25 के भी देगा, 30 के भी देगा, अच्छे शू बोल के। बट सिर्फ आपने एक चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है, आपने शू ऐसा लेना है जो आपकी नी को सपोर्ट करे, जो बहुत ज़्यादा है फोर्स आपके नी पे ना आने दे जब आप दौड़ रहे हो। अदरवाइज़ मतलब जितने भी मिथ है ना कि रनिंग से ये होता है, रनिंग से वो होता है, ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। आज के टाइम पे अगर मैं आपको बोलूँ, अभी नेक्स्ट वीकेंड एक इवेंट हो रहा है मुंबई में, अगर नेक्स्ट संडे आप सुबह उठ के स्टार स्पोर्ट्स लगा के देखोगे, वो इवेंट लाइव भी आएगा। टाटा मुंबई मैराथन इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, 60,000 रनर्स वहाँ पे दौड़ते हैं, बाहर से भी आते हैं, है ना। वो सारे रोड पे ही दौड़ रहे होते हैं अगर आप देखोगे, और वो रोड पे ही ट्रेनिंग भी करते हैं। सो आज अभी ये स्पोर्ट्स इंडिया में बहुत नया है। इंडिया में लोगों को तो अभी भी लगता है कि पता नहीं क्यों दौड़ रहे हैं, क्या मिलेगा दौड़ के, है ना। बट जो उसके हेल्थ इम्पैक्ट है, जो हेल्थ बेनिफिट है, वो कोई नहीं देखता है। जो रनिंग के आफ्टर इफेक्ट है वो कोई नहीं देखता कि अच्छा रनिंग से हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। सबको ये लगता है पता नहीं क्यों दौड़े जा रहे हैं, क्या मिलेगा दौड़ के। इवन मेरे घर वाले कई बार मुझे बोलते हैं, तू इतना क्यों दौड़ता है, क्या मिलता है दौड़ के। मेरे पास कुछ आंसर नहीं होता, मैं उनको बता नहीं सकता, क्योंकि वो घर वाले हैं। मम्मी तो सीधा डांट देती है, क्या मिलेगा इतना दौड़ के, कभी वहाँ पहुँचा होता है दौड़ने, कभी यहाँ। बट जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है आपकी लाइफ में, वो इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि वो एक आपको अगर रनिंग में सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रही है, वो आपके हर काम पे इम्पैक्ट डालती है। आप हर काम को पॉजिटिवली करते हो, चाहे आपको ऑफिस का काम है, चाहे बाकी कोई काम है, चाहे आपके रिलेशन है, चाहे फैमिली रिलेशन है, चाहे बाकी रिलेशन है। रनिंग इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है आपकी लाइफ में कि आपको खुद अंदर से फील होता है कि आप पूरे चेंज हो चुके हो, है ना। कोई आपके माइंड में कभी नेगेटिव थॉट नहीं आएगी, कभी ये नहीं होगा कि यार ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, है ना। आपको हमेशा लगेगा एक बार ट्राई तो करके देखते हैं एटलीस्ट।
नहीं होना तो अलग चीज़ है, एक बार आप हर काम के लिए ट्राई करोगे, चाहे वो कुछ भी काम हो, कि मुझे ये नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता। आप कर सकते हो उसको, एक बार ट्राई करने की देर है बस। तो लाइक मैं तो आपको यही बोलूँगा कि जब भी टाइम लगता है, जितना भी टाइम लगता है, कहीं से स्टार्ट करो। 10 मिनट है आपके पास, 15 मिनट है, ज़रूरी नहीं है रन करना है, आप वॉक से स्टार्ट करो। वॉक करने निकल जाओ, 10 मिनट की, 15 मिनट की वॉक करो, 20 मिनट की वॉक करो, उसको धीरे धीरे रन वॉक में कन्वर्ट कर दो। वो रन वॉक कब पूरी रन में कन्वर्ट हो जाएगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। Big round of applause. Question, yeah. So first of all, अब जो डेली रूटीन वाली बोर्डम होती है, लाइक इफ यू स्टार्ट रनिंग, तो मैंने भी मतलब फ्यू मंथ्स बैक आई स्टार्टेड रनिंग, तो डेली रूटीन होता है कि आप भागने चले जाते हो, बट आफ्टर फ्यू डेज यू फील लाइक कि रोज ही कर रहा हूँ, तो हाउ टू ओवरकम दैट बोर्डम? उसके लिए जो बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊँ, वो आता है कि आप रोज़ रोज़ वही चीज़ करे जा रहे हो। आपको ना, अगर जैसे आपको अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे, आपको अपने फोकस रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं करना, तो आप कोई भी एक टारगेट रखो कि मैंने 10 किलोमीटर इतने टाइम में करनी है। 2-3 तरीके हैं, या तो आप कोई इवेंट रजिस्टर कर लो। जब आपके पास इवेंट होगा तो आपको लगेगा कि अच्छा मैंने इवेंट में वहाँ पैसे दिए हुए हैं, मैंने वहाँ दौड़ना है, तो उसकी मैंने तैयारी करनी है। आपने वो भी नहीं करना, आप अपना पर्सनल टाइम सेट कर लो कि मैंने 10 किलोमीटर 50 मिनट में करना है। जब आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे ना, तो आपको वो डेली वाला रूटीन अपना बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, 10 किलोमीटर इतने में करने, उसके बाद अपना नेक्स्ट रख लो कि मैंने हाफ मैराथन इतने टाइम में करनी है, मैंने फुल मैराथन इतने टाइम में करनी है। आपको ये छोटे छोटे टारगेट लेके चलोगे तो आपको कुछ भी बोरिंग नहीं लगेगा। सेकेंड चीज़, जैसे आपने बोला कि नॉन वेज हम नहीं खाते, तो नॉन वेज खाने से जो प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हाउ डू यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि वेज के साथ कैसे आप खाते हो, सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं? अच्छा, ये वैसे तो देखो, मतलब सबका अपना पर्सनल होता है डाइट का, मैं किसी को फोर्स करता नहीं हूँ, बट मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किए हुए हैं, इसलिए बता रहा हूँ। मैं नॉन वेज खा के भी रनिंग की हुई है, वेज खा के भी की हुई है। अभी काफ़ी टाइम से तो लाइक मैं ऑलमोस्ट वीगन वाली डाइट पे हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हमें प्रोटीन नॉन वेज से ही मिलता है। जो प्रोटीन हमें वेज में मिलेगा वो नॉन वेज में कभी भी नहीं मिलेगा। फर्स्ट थिंग, जितनी आपकी दालें हैं, है ना, चने हो गए, राजमा हो गए, इनसे ज़्यादा प्रोटीन किसी भी चीज़ में नहीं है। और तो मतलब आजकल तो मार्केट में नॉन वेज भी इतना केमिकल वाला आ रहा है कि उसको ना खाओ तो ज़्यादा बेटर है। सेकंड थिंग, ये तो मतलब चॉइस की बात होगी। जो मैं रनिंग पे इम्पैक्ट बता रहा हूँ, जब आप नॉन वेज खाते हो तो नॉन वेज खाने से क्या होता है, जब आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट होएगा, उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं। इन्फ्लेमेशन इज़ द कॉज ऑफ एवरी डिजीज़, चाहे कुछ भी है, XYZ आपकी बॉडी में। आपको इवन फीवर भी आ रहा है तो उसका भी कॉज इन्फ्लेमेशन है। जब आप नॉन वेज नहीं खाते हो तो वो फ्री रेडिकल्स नहीं बनते हैं। वो इन्फ्लेमेशन क्या करता है कि जब आपकी रिकवरी, देखो रनिंग तो ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है रिकवरी। आज आप 5 किलोमीटर दौड़ के आए हो, अगर आपकी उसकी रिकवरी नहीं हुई तो आप नेक्स्ट डे या तो उठ ही नहीं पाओगे, या आपका मन नहीं करेगा दौड़ने का, या अगर आप दौड़ रहे हो तो वो गलत कर रहे हो। आपको अपनी रिकवरी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि अगर आज मैंने 10 किलोमीटर दौड़े हैं तो मेरी डाइट ऐसी होनी चाहिए, मेरी स्लीप ऐसी होनी चाहिए कि मेरी आज की रिकवरी हो जाए। तभी आपको उन 10 किलोमीटर दौड़ने का इम्पैक्ट दिखेगा, है ना। इन्फ्लेमेशन क्या करता है, इन्फ्लेमेशन आपकी रिकवरी को बहुत स्लो कर देता है। सो रनिंग के पहले 3 साल मैंने नॉन वेज खूब खाया है। जब मैं दौड़ के आता था, लेट्स से कि मैं 100 किलोमीटर का कोई इवेंट करके आता था, शिमला में होता है एक इवेंट ना हर साल जून में 100 किलोमीटर का, तो उस इवेंट, मतलब मैं हर साल करता हूँ। पहले 3 साल वो इवेंट करने के बाद मैं चल भी नहीं पाता था, मुझे क्रैम्पिंग और फटीग इतनी ज़्यादा होती थी कि नेक्स्ट डे मुझे दोस्त ही उठा के गाड़ी में बैठा के लेके आते थे, बिल्कुल नहीं चला जाता था। लास्ट 3 साल से मैं वो इवेंट दौड़ने के बाद खुद से ड्राइव करके वापस आता हूँ। इतना मेजर इम्पैक्ट मुझे अपने ऊपर दिखाए, मतलब आपकी रिकवरी इतनी फास्ट हो जाती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि हाँ आप इतना दौड़ के भी आए हो। वन लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे हम जिम जाने से पहले कोई प्री वर्कआउट्स लेते हैं, सो रनिंग करने से पहले भी हमें कोई प्री वर्कआउट? रनिंग स्टार्ट जब आप कर रहे हो तब कुछ बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप अपनी डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो कि एक बनाना खा लो। बनाना नहीं खा सकते हो तो ब्रेड जैम ले लो, या ब्रेड जैम भी नहीं ले सकते हो तो वॉलनट खा लो 2 हाफ एन आवर पहले। हाफ एन आवर। सो गोल सेटिंग, वेज नॉन वेज, डॉक्टर साहब ने अपना डॉक्टर ओपिनियन भी दे दिया, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम रनर, ठीक है ना।
तरह प्री वर्कआउट के लिए वो कुछ एक्सरसाइज हमें करवाते ही हैं, शुरू करते हैं ना जब हम कि क्या करना है प्री वर्कआउट 10-15 मिनट हम करते ही हैं। प्री वर्कआउट डाइट। प्री वर्कआउट डाउट जो 2-3 चीज़ें जो बोली हैं। थैंक यू अमित फॉर योर इंसाइट एंड वैल्यूबल एडिशन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी नए बच्चे भी आएंगे, नए ट्रेनी भी आएंगे, तो हमारे पास रब इफेक्ट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जगतार जी। जगतार जी का फिटनेस लेवल हमने ना अभी टेस्ट किया है, 5 साल पहले किया था, आज अभी किया मशीन पे फिटनेस टेस्ट लेवल इनका। तो अभी इनकी एज जो आ रही है 10 साल नीचे आ रही है लगभग फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल एज। और 5 साल पहले जब ये 56 के थे, 55 पे जब पहले बार हुआ था 56 पे थे, तो इनकी एज, इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सका, मशीन ने इनके एज दी 27 ईयर। अच्छा, ये बहुत, सॉरी मैं आपको बात करता हूँ, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये सर ने बहुत सही बात बोली है। अब जैसे जो मेरी एज है, आई एम अबाउट टच 40, जो मेरी फिटनेस एज है मैं अभी भी दिखा सकता हूँ, वो 20 आती है। तो वो एक अंदर से और अपना अचीवमेंट लगता है कि हाँ अच्छा तो यंग। और मैंने वो सबको सीख दी हुई है कि भाई ये गैप को कम कर लो, और गैप को कम करने के लिए आपको ट्रेनर दिए हुए हैं। और मेरे को बड़ी त्रासदी होती है कई बार। मेरे को अमित कई बार बोलता है कि सर आप इतना पुश करते हो बंदों को, आपको क्या मिलता है? मैंने ये भी एक मिशन था कि बहुत हमने